تو آج کی کہانی ایک دیہاتی لڑکی کی ہے۔ رات پھر اس لڑکی پر انتہائی غصہ آیا۔ ایک دیہاتی لڑکی کو میری زندگی میں شامل کر دیا، یہ بالکل میرے لائق نہیں، ذہن نہیں ملتا، عجب ہر وقت آگے پیچھے جی جی کرتی رہتی ہے۔ اور آج پھر اس کو زبردست ڈانٹ دیا۔ اس نے میری ڈانٹ پر بھی کوئی ریئیکشن نہیں دیا، خاموش رہی۔ اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ کافی دیر بعد وہ جب خود کو نارمل کرنے میں تھوڑا کامیاب ہوا تو دوبارہ بستر پہ لیٹ گیا۔ پھر جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ چھٹی کا دن تھا، اس لیے اسے بیدار ہونے کی کوئی جلدی نہیں تھی، لیکن 10 بجے الارم نے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں گھس گیا۔ سر میں ہلکے درد کا بھی احساس ہوا۔ صبح 6 بجے والا واقعہ ابھی بھی ذہن میں تازہ تھا۔ وہ نہا کر جب باہر نکلا تو ٹھٹک گیا۔ اس کی شرٹ بیڈ پہ آج نہیں پڑی ہوئی تھی۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ وہ نہا کر نکلا ہو اور بیڈ پہ شرٹ نہ ہو۔ اسے کچھ عجیب لگا۔ اس نے الماری سے ایک شرٹ نکال کر پہن لی اور ناشتے کے لیے نیچے چلا گیا۔ ناشتے کے دوران دوسری حیرت اسے تب ہوئی جب اسے ٹیبل پہ ناشتہ نظر نہیں آیا۔ یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ اس کے جاگتے ہی میز پہ ناشتہ سجا دیا کرتی تھی۔ تو اس کا مطلب وہ ناراض ہے، اس نے سوچا۔ ناراض ہے تو ہوتی رہے ناراض، میں نے کیا کیا؟ تو نے اچھا بھی تو نہیں کیا۔ کتنی بری طرح سے پیش آئے اس سے، دل سے آواز آئی۔ وہ کچن میں چلا گیا اور خود اپنے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ پھر اسے ایک دم محسوس ہوا اسے ناشتہ بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اتنے دنوں سے وہ اس کے ہاتھوں کا بنا ناشتہ کھا رہا تھا۔ خود کھانا بنانے کی تو اس کی عادت ہی چھوٹ گئی۔ وہ بنا ناشتہ بنائے کچن سے باہر نکل آیا۔ وہ یوں ہی صوفے پہ ڈھیر ہو گیا۔ ایک سوچ جو پہلی بار اس کے ذہن میں آئی، وہ کہاں ہے؟ یہ سوچ کر وہ کھڑا ہو گیا اور گھر کے کمروں میں اسے تلاش کرنے لگا، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ اس کی ٹینشن میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ ایسے تڑپنے لگا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے۔ کہاں چلی گئی؟ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ جہاں چلی گئی چلی گئی، اس کو اس سے کیا؟ وہ بھی کہاں اسے اس گھر میں چاہتا تھا۔ اچھا ہوا خود چلی گئی، ویسے بھی کسی نہ کسی دن تو اسے جانا ہی تھا نا۔ نہیں، وہ ہمیشہ یہی چاہتا تھا وہ چلی جائے، لیکن آج جب وہ چلی گئی تو وہ اس طرح پریشان کیوں تھا؟ وہ خوش کیوں نہیں تھا؟ جبکہ اصولاً تو اسے بہت زیادہ خوش ہو جانا چاہیے تھا۔ کیا وہ اس لیے پریشان ہے کہ جب دادی واپس آئے گی تو وہ اسے کیا جواب دے گا؟ نہیں، دل سے فوراً آواز آئی۔ وہ دادی کے لیے نہیں، خود اپنے لیے پریشان تھا۔ مگر کیوں؟ اس نے دل سے پوچھا۔ کیونکہ تم اس سے پیار کرنے لگے ہو۔ دل نے ایک عجیب انکشاف کر دیا۔ وہ گمسم ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا دل؟ وہ اس سے پیار کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اس سے نفرت کرتا تھا، شدید نفرت۔ نہیں، دل جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے دل کو جھٹلانے کی کوشش کی، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا، کیونکہ دل جھوٹ نہیں سچ بول رہا تھا۔ ہاں، میں اسے پیار کرتا ہوں، بہت پیار۔ مجھے صرف اس کی عادت نہیں ہو گئی، میں اسے پیار بھی کرنے لگا ہوں۔ مگر وہ کہاں ہے؟ اس نے چلا کر پورے گھر سے پوچھا، اور جواباً پورا گھر خاموش تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار گھر میں اکیلے پن کا احساس ہوا۔ اسے پہلی بار گھر کی خاموشی ڈرا رہی تھی۔ اس پہ پہلی بار انکشاف ہوا۔ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا،
वो जिसे अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहता था, वो यही लड़की थी। इसके अलावा और कोई नहीं हो सकती। उससे प्यारी तो कोई हो ही नहीं सकती। इतनी मासूम, इतनी सच्ची। उसे जीवन साथी के रूप में सिर्फ यही लड़की चाहिए थी, और तो कोई हो ही नहीं सकती उसके जैसी। ऐसी लड़की दुनिया में कहीं नहीं है जो उसके इतने गुस्से के बावजूद खामोश रहे, जो उसके जागते ही नाश्ता लगा दे, उसके मांगने से पहले उसे चाय पिला दे। इतनी सब्र, इतनी कनात वाली लड़की और कहाँ होगी। वाकई अगर दादी उस पे भरोसा करती थी तो बिल्कुल सही करती थी। वो वाकई अपने पोते के लिए सबसे अच्छी बीवी ढूंढ लाई थी। अगर वो खुद उनकी मर्जी के खिलाफ किसी मॉडर्न लड़की से शादी करता तो क्या हो जाता? वो लड़की क्या घर के काम करती? क्या उसमें इतना सब्र होता? क्या वो उसके इस तरह चिल्लाने पे खामोश होती? नहीं नहीं, वो पहली बार उसकी कही हुई सारी बातें याद कर रहा था। क्या? बपटी पार्लर? ये टीबी करंट तो नहीं मारता जी? हमारे गांव में पहले मर्द खाना खाता है, फिर औरत उसका बचा हुआ खाना खाती है। आपको गाड़ी चलाना आता है जी? या अल्लाह, मुझे अपने घर से खाकी हाथ मत लौटाएं। मैं आपसे जो मांग रही हूं वो मुझे दे दें। जी, आपकी वो नीली शर्ट जल गई। आपसे झूठ बोल सकती हूं, खुदा से तो नहीं, वो तो सब जानता है। आपसे झूठ बोलकर मैं बच भी जाऊं तो खुदा से कैसे झूठ बोल सकती हूं? ओ मेरे अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? क्यों कर दिया? मैंने उससे कितनी बदतमीजी से बात की सुबह। मुझे क्यों इतना गुस्सा आ गया था? हालांकि उसने ऐसा भी कुछ गलत नहीं किया था, सिर्फ हाथ ही तो लगाया था। और मैं, और वो इतनी अच्छी थी कि उसने कोई शिकवा, कोई शिकायत तक नहीं किया। लेकिन वो कहाँ चली गई? प्लीज वापस आ जाओ। मैं तुम्हें फिर कुछ नहीं कहूंगा। हम दोनों मिलकर प्यार मोहब्बत से रहेंगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता बानी, लौट आओ। उसे अपने गालों पे नमी का एहसास हुआ। वो भागते हुए पोर्च में गया और गाड़ी में बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। गाड़ी वो फुल स्पीड से चला रहा था। इतने रश में इतने स्पीड से गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन वो हर खतरे से अनजान बस जल्दी जल्दी रेलवे स्टेशन पहुंच जाना चाहता था। कई बार उसकी गाड़ी दूसरी गाड़ियों से टकराते टकराते बची थी। वो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। गाड़ी से निकलकर वो भागते हुए स्टेशन तक गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये तो अभी तक रेलगाड़ी आई ही नहीं होगी, या फिर आकर वो भागकर बेंच पे बैठे उस इंसान तक गया जो पता नहीं किन ख्यालों में गुम था। एक्सक्यूज मी जनाब, ये रेलगाड़ी की टाइमिंग क्या है? उस आदमी ने हवास बाख्ता मुखातिब को देखा। अभी थोड़ी देर पहले रेलगाड़ी तो निकल चुकी है। उसे लगा जैसे वो आदमी कह रहा हो, आपकी तो जान निकल चुकी है। उसके जिस्म में खून की गर्दिश अचानक रुकने लगी। वो मायूस सारी दुनिया से बेजार घर लौट आया और सोफे पर ढेर हो गया। ऐसे कैसे जा सकती है वो? मुझे छोड़कर वो नहीं जा सकती। इतनी मामूली गलती की इतनी बड़ी सजा कौन देता है? क्या सब कुछ खत्म हो गया? अब कुछ भी बाकी नहीं रहा था क्या? वो सर थामे सोफे पे बैठा था जब उसे अपने बिल्कुल पास ही किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। उसने गर्दन मोड़कर देखा तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। वो उसके बिल्कुल पास खड़ी थी, उसे कुछ ही फासले पर। वो करंट खाकर खड़ा हो गया। तुम कहां चली गई थी?
क्यों गई थी तुम? जी वो हम तो यहीं थे। उसने उसकी बात नहीं सुनी और आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। वो इस तरह उसके गले लगाने से हैरान भी थी और खुश भी। अब आइंदा तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना, ओके? चाहे मैं तुम्हें जितना डांटूं, ओके? जान निकल जाती है मेरी। हम सब कुछ फिर से शुरू करेंगे। तुम एक बार फिर से दुल्हन बनोगी और इस बार तुम्हें कमरे से बाहर निकालने की बजाय बाहों में समेट लूंगा। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सुबह उसके मुंह से निकलने वाले शोले सुनकर तो टूट ही गई थी। उसे लगा अब उसकी जिंदगी का तो कोई मकसद ही बाकी नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया। वो कमरे से निकलकर उसके बराबर वाले कमरे में जाकर रोती रही और रोते रोते वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। उसकी आंख तब खुली जब उसने सुना कोई उसे पुकार रहा है। वो भागकर खिड़की तक गई तो उसके शौहरे मोहतरम जो सुबह आग बरसा रहे थे अब बड़ी बेताबी से अपनी ज़ौजा मोहतरमा को ढूंढ रहे थे। उसे हैरत भी हुई और अच्छा भी लगा। वो बहुत देर तक खिड़की से उसकी उदास शक्ल देखती रही। फिर उसने चिल्ला चिल्ला कर अपनी मोहब्बत का इजहार किया, उन दीवारों के सामने, उस घर के अंदर। लेकिन वो नहीं जानता था जिसके लिए वो इकरार कर रहा है वो उसके बहुत करीब है। वो जानती थी कि वो उसे प्यार करने लगा है। वो कई बार उसके चेहरे पे अपने लिए मोहब्बत का पैगाम पढ़ चुकी थी, लेकिन वो इकरार नहीं कर रहा था क्योंकि अभी तक खुद उसके दिल ने ही इकरार नहीं किया था। रात को 2 बजे उठकर बिरयानी खाई जाती है। जनाब चोरी चोरी कीमा अपनी प्लेट में डालकर खाने लगते हैं। गाड़ी में बैठकर चुपके चुपके उसे देखा जाता है। साफ इकरार करने में ही मुश्किल पेश आ रही थी जनाब को। उसके मुंह से अपने लिए मोहब्बत का इकरार सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। वो उस वक्त उसके पास जाना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि वो उसके करीब है, लेकिन वो नहीं गई। वो उसे तंग करना चाहती थी। जिस शौहरे मोहतरम ने उसे इतने दिन तंग किया वो भी अपना बदला वसूल करना चाहती थी। सुबह वो उससे गुस्सा थी, नाराज थी, रोई थी। लेकिन अगर आज की सुबह वो सब कुछ ना हुआ होता तो वो कभी अपनी मोहब्बत का इकरार ना करता। ये तकदीर कातिब का फैसला था। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बेशक कोई है जो हमारी हर सोच पे इख्तियार रखता है और हमारे लिए बेहतर फैसले तजवीज़ करता है। वही जो इस पूरी कायनात को चला रहा है। ये सारी दुनिया जिसके मातहत है वही तो खुदा है। उसने तशक्कुर आमेज निगाहों से ऊपर आसमान की तरफ देखा। बेशक जोड़े वही बनाता है आसमानों पर और अपने इंसानों में कभी फर्क नहीं करता, ना देहाती और शहरी में और ना ही गरीब और अमीर में। वो सबको 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ और 2 पांव नवाज कर भेजता है। फर्क तो सिर्फ इंसान करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये खूबसूरत सी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर किया करें। मिलते हैं